Hello everyone, this is Sujata ma'am and welcome to Ajay Sir Pioneer. So children, today we will learn EVS 2, okay, our history part. And in our history, now we are going to learn our fifth chapter, okay. Our fifth chapter is Shivaji's Education. Shivaji's Education. So children, before start our lesson, we need to know their dictation words, okay. So first we will read dictation, okay, and then we will start our fifth chapter, okay. So let's begin. Our first dictation is SANSKRIT Sanskrit, okay. SANSKRIT Sanskrit. Then MAVLAS Mavlas, MAVLAS Mavlas. BANGALORE Bangalore, BANGALORE Bangalore. Children, you need to read these all dictation words after me at least 2 times, okay. आप सबको जो है रीडिंग करना है मेरे पीछे, okay, and then you should write, okay. Okay. Fourth, SCIENCES Sciences, SCIENCES Sciences. LANGUAGES Languages, LANGUAGES Languages. Then 6, DADAJI Dadaji, KOND Kond DEV Dev Konddev, Dadaji Konddev, okay. Next, CONCESSION Concession, CONCESSION Concession. Next, PEASANTS Peasants, PEASANTS Peasants, that means किसान, okay, शेतकरी ज्याला आपण म्हणतो. Then REJUVENATED Rejuvenated, Rejuvenated, that means उसका आराम करना, ठीक है, फिर से उसे बनाना, ठीक है, नए तरीके से उसे उसका आराम करना, शुरुआत करना. Then CULTIVATING Cultivating, CULTIVATING Cultivating लागवड, जिसे फसल जो है खेती करना, ओके. देन REPAIRED Repaired, REPAIRED Repaired, Repaired यानी उसे फिर से बनाना, ठीक है, तैयार करना, Repaired. DILAPIDATED Dilapidated, DILAPIDATED Dilapidated, that means पूरी तरह से टूट जाना या टूटने वाला, ओके. कोई भी चीज जो होती है वो पूरी तरीके से टूटने वाली होती है, म्हणजे मोडकळीस आलेला, यानी वो अभी गिरने वाली है, टूटने वाली है, उसे डिलैपिडेटेड कहते हैं. देन THROBBING Throbbing, THROBBING Throbbing यानी धड़ या फिर उसका जो लगभग होता है फिर से शुरू होना, ओके, उसकी जो धड़ जी लगभग जो होती है वो फिर से शुरू होना. Acquire, ACQUIRE Acquire, ACQUIRE Acquire, फिर से बनाना, ओके. ARCHITECTURE Architecture, ARCHITECTURE Architecture. जो स्पेलिंग बड़ी होती है उन्हें आप चाहे तो हाफ ऑफ यानी डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हैं, लाइक ARCHI, देन TECTURE टेक्चर, आर्किटेक्चर, ओके. आर्किटेक्चर उसका जो बांधकाम होता है, किस तरह से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन, ओके. नेक्स्ट, INSTIGATION Instigation, INSTIGATION Instigation.
दैट मीन्स किसी बात का पछतावा जिसे कहते हैं, यानी फील होना एक, ओके। देन ESCAPING, escaping, निकल जाना, छूट जाना वहां से, escaping, ESCAPING, escaping. Then TERRITORIES, territories, TERRI, terry, TORIES, territories, यानी सैन्य, सेना, ओके। ENGAGED, engage, ENGAGED, engage. And last our 20th dictation is KNOW, know, LEDGE, knowledge, ओके। KNOW, के जो है वो साइलेंट होगा, LEDGE, knowledge, ओके। So here is our dictations of chapter number 5. So you need to learn and write all dictation words at least 2 times, okay. So here I am giving you homework. Learn and write dictation 2 times. Why I am saying learn? Because it will be asked in oral, okay. आपको जो है oral में सारे dictation पूछे जाएंगे. So you need to learn all these spelling of words, okay. सारे जो spelling है उसे अच्छे से learn करना है, okay. And write them 2 times, okay. So after writing, we are going to start our chapter number 5. Okay children, so let's start our 5th chapter, Shivaji's education, okay. So in our previous session we had learned about Shivaji's childhood, okay. Now we are going to know about Shivaji's education, okay. So let's begin. Beginning of Shivaji's education, that means किस तरह से शिवाजी महाराज जी थे, उनकी शिक्षण प्रणाली यानी एजुकेशन की शुरुआत हुई. So Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. Yes, Shahaji Raje, that means father of Shivaji. शिवाजी महाराज जी के जो पिताजी थे वो खुद संस्कृत जो लैंग्वेज है उनमें बहुत ही स्कॉलर थे, ओके. उनका बहुत प्रभाव था स्कॉलर संस्कृत लैंग्वेज में. In the Bangalore court, he had under his patronage artists and scholars of various languages. See, now in the Bangalore court, now we had learned how did Shahaji Raje defeat the king of Karnataka, okay, and then Adil Shah awarded him a Jagir of Bangalore, okay. जिस तरह से उन्होंने कर्नाटका में अपनी जो प्रतिभा थी वो दिखाई, किस तरह से उन्होंने वहां के राजाओं को डिफीट किया, यानी उनका पराभव किया, हराया उन्हें युद्ध में, और फिर उन्हें गिफ्ट में आदिल शाह ने जो है बेंगलोर की जागीर दे दी, ओके. देन वो वहां के राजा कहलाए, शाहजी राजे, ठीक है. देन he had under his patronage artists and scholars of various languages. That means जो आर्टिस्ट थे एंड जो स्कॉलर्स थे लैंग्वेजेस में, यानी जो महान पंडित हुआ करते थे, उन्होंने अपने कोर्ट में संरक्षण दिया, ओके. देन ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर फॉर शिवाजी. उनमें से कई इंटेलिजेंट जो टीचर्स थे उन्हें शिवाजी महाराज के एजुकेशन के लिए उन्होंने अपॉइंट किया, ओके, यानी उन्हें नियुक्त किया. देन शिवाजी एजुकेशन बिगन व्हेन ही बिकेम 7 years old. यस, शिवाजी महाराज जी थे जो उनकी एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? व्हेन दे वाज 7 years old. वो तकरीबन 7 साल के थे, ओके. सून शिवाजी बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. देखिए उसी इतनी कम एज में 7 years उनकी एज थी, वो धीरे धीरे बहुत ही स्किल्ड हुए रीडिंग एंड राइटिंग में, ठीक है. ही बिगन टू रीड द स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन. देखिए वो खुद से, यानी खुद से ही इतने जो महान गाथाएं थी, स्टोरीज थी, रामायण, महाभारत, भागवत, वो खुद
रीडिंग किया करते थे, ठीक है। देन ऑन हिज ओन टू टीच हिम वॉरफेयर, शहाजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध जो होता है, लड़ाई की शिक्षा प्राप्त करना, यानी किस तरह से लड़ा जाता है, युद्ध किया जाता है, उसे वॉरफेयर कहते हैं, ओके। तो उसे सीखने के लिए भी शहाजी राजे जो थे, शहाजी महाराज जो थे, उन्होंने स्किल्ड जो टीचर्स थे उन्हें अपॉइंट किया शिवाजी महाराज जी के लिए, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए। सम टीचर्स दे बिगन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स, टू रेसल, टू यूज स्वॉर्ड एंड दानपट्टा। Thus, at the age of 12, Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts. See, only age of 12, that means तकरीबन आपके एज के, है ना बच्चों। देखिए आपके एज यानी 12 years old के जब शिवाजी महाराज थे, उन्होंने कितनी सारी बातें जान ली, सीख ली, उनसे परिचय किया। अगर आप देखोगे तो देखिए, दे बिकम टू टीच शिवाजी, जो उनके लिए वॉरफेयर जो एजुकेशन था उसके लिए जो टीचर्स अपॉइंट किए थे, उन्होंने देखिए शिवाजी महाराज जी को राइड, हॉर्स राइडिंग, ओके, घुड़सवारी जिसे हम कहते हैं, हॉर्स राइडिंग, टू रेसल, कुश्ती, है ना। देन टू यूज स्वॉर्ड एंड दानपट्टा। दानपट्टा मीन्स टाइप ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सॉलिड स्ट्रेट वेपन जिसे हम कहते हैं, ओके, स्ट्रेट वेपन जो होता है लाइक स्वॉर्ड, वो किस तरह से चलाया जाता है उसे सिखाया। Thus, at the age of 12, शिवाजी became acquainted with a different branches of learning arts। देखो इन सब बातों से वो परिचित हुए और उन्होंने बहुत जल्दी उसे सीख लिया। As well as study, that means अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ साथ उन्होंने ये सारी बातें भी सीख ली कि किस तरह से युद्ध के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है ना, किस तरह से हमें खुद को तैयार करना होता है। Soon, Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the state of Nayakas. Nayaka means local chiefs in Karnataka. See, that means जो आदिल शाह जी थे, उन्होंने उसी वक्त शहाजी राजे जो थे उन्हें एक मुहिम पे भेजा। एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक मुहिम, ठीक है, एक टाइप का अभियान जिसे हम कहते हैं। उस अभियान के लिए उन्होंने शहाजी राजे को सिलेक्ट किया, कॉन्कर द स्टेट ऑफ नायकन इन कर्नाटका। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन, शहाजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। देखिए आप उस मुहिम के लिए शहाजी राजे जी को जाना था, तो वहां पर जाने से पहले उन्होंने अपनी जो वाइफ थी जीजाबाई एंड हिज सन शिवाजी महाराज, उन्हें पुणे के लिए पुणे रवाना करने के लिए सोचा, ठीक है, वहां पर भेजने के लिए उन्होंने सोचा। विद देम ही सेंट एलिफेंट, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री, अ ट्रेजरी, अ फ्लैग, एज ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर्स, ब्रेव जनरल्स एंड रिनोव्ड टीचर्स। देखिए अब जब उन्होंने सोचा कि शिवाजी और जो जीजा माता थी, उनकी माता जी यानी वाइफ ऑफ शहाजी राजे, तो उन्होंने पुणे के लिए पुणे भेजने के लिए सोचा। तो उनके साथ साथ शहाजी राजे जो थे, उन्होंने देखिए विद देम ही सेंट, और क्या क्या चीजों को उनके साथ दिया गया, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री, दैट मीन्स बहुत ही सेना, बड़ी सेना, पैदल सेना जिसे हम कह सकते हैं, ट्रेजरी यानी खजीना, अ फ्लैग, एज ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर, और कुछ इस तरह के विश्वासु जो सैनिक थे, मिनिस्टर थे, वहां के मंत्री जो थे, एंड ब्रेव जनरल्स, यस, और कुछ ब्रेव जो जनरल्स थे उन्हें भी उनके साथ, एज वेल एज रिनोव्ड टीचर यानी प्रख्यात जो नामी शिक्षक थे, उन्हें भी उनके साथ भेजा गया ताकि वहां जाकर, पुणे जाकर वो शिवाजी महाराज जी का जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू कर सके। ओके ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर नोइंग बिगिनिंग ऑफ शिवाजीज एजुकेशन, नाउ रिजुवेनेशन ऑफ पुणे। रिजुवेनेशन ऑफ पुणे, दैट मीन्स पुणे का किस तरह से काया पलट हुआ, किस तरह से चेंजेस हुए। ओके,
So see, Shivaji, Jijabai and Shivaji returned to Pune. That means for expedition he sent Jijabai and Shivaji in their native place, okay, Pune. Then after return to Pune, Shivaji remembered his childhood days which he had spent on शिवनेरी. देखिए उनका जो बचपन था वो शिवनेरी पे, दैट मीन्स पुणे में शिवनेरी फोर्ट पे किस तरह से बीता था, ये सारी बातें उन्हें याद आ रही थी. ओके, ही कुड सी द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. वहां पर जाने के बाद उन्होंने फिर से वो जो लॉफ्टी पीक्स यानी जो महाकाय उन जो बड़े बड़े पर्वत थे है ना, सह्याद्री पर्वत, उन्हें फिर से उन्होंने देखा और वो देखते ही उन्हें बहुत खुशी हुई. उन्हें वो सारी बातें याद आ रही थी किस तरह से उन्होंने अपना अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बचपन है वो स्पेंड किया है ना, वो सब उन्हें याद आ रहा था. पुणे एट दैट टाइम was not such a big city. It was a totally devastated by Shahaji's enemies. देखिए जिस तरह से अब हम पुणे को देख रहे हैं, बिल्कुल वो उस वक्त यानी एट दैट टाइम इन 16th century, ओके, दैट मीन्स बिफोर 400 years ago, तकरीबन 400 साल पहले पुणे की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत ही खराब थी. दैट द पुणे नॉट सच अ बिग सिटी, वो बिग सिटी नहीं थी. इट वॉज अ टोटली डिवास्टेड बाय द शाहजीज एनिमी, यानी शाहजी राजे जो थे उनके शत्रुओं द्वारा वो जो छोटा सा वो नगर था पुणे, उसे पूरी तरह से उन्होंने क्या किया था, तबाह करके रखा था. यानी देखिए उन्होंने कितना आतंक फैला कर रखा था पुणे में, जो शाहजीज के जो एनिमीज थे है ना. प्रॉपर्टीज वर डैमेज, हाउसेज वर डेमोलिश्ड, टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड, द फ्रिटन पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस. देखिए उन्होंने उन जो शत्रु थे उन्होंने किस तरह से वहां पे आतंक फैलाया था, पूरी तरह से जो वहां की प्रॉपर्टीज थी वो डैमेज करके रखी थी. देन हाउसेज वर डेमोलिश्ड, जो घर थे, जो जितने भी बस्तियां थी किसानों की है ना, पेजेंट्स की, उन्हें तोड़कर रख दिया था उन्होंने. डेमोलिश, टेम्पल हैड कोलैप्स, जो मंदिरें थी उन्हें गिरा दिया था. उनकी जो किस तरह से उन्हें भी नुकसान पहुंचाया था. द फ्रिटेंड पीपल यानी जो डरे हुए सहमे हुए से जो लोग थे वहां रहने वाले, वो सब अपना गांव छोड़कर वहां से चले गए थे, ओके, फ्रॉम देयर विलेजेस. फील्ड हैड बिकम बैरन, यस, वहां के जो फील्ड थे यानी अगर वो गांव के लोग ही वहां पे नहीं रहेंगे तो वहां पे खेती कैसे होगी. तो ऑब्वियसली वहां द फील्ड हैड बिकम बैरन यानी ओसाड़, सुनसान पड़े हुए थे. थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, यस, वहां पे घना जंगल बन रहा था. थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन. वुल्फ्स रोम इन द कंट्री साइड. वुल्फ्स जिस तरह से हमें पता है ना, वाइल्ड एनिमल वुल्फ, वो वहां पे रोम यानी घूम रहे थे उस घने जंगल में. उनका आना बढ़ गया था. जो पुणे का जो कंट्री साइड थी वहां पे वो बड़ी तादाद में आ रहे थे उस जंगल की ओर. पुणे thus was totally in shambled and ruined. Yes, इस तरह से हम जान सकते हैं कि पुणे की हालत क्या हुई थी, यानी किस तरह से उन जो एनिमीज थे उन्होंने बर्बाद करके रखा था पूरी तरह से. ruins and shambles, okay. When the people living around come to know that Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. Jijabai called all them and reassured them that they would be safe in Pune. देखिए जब उन लोगों को पता चला, आसपास रहने वाले लोगों की, कि यहाँ पर जीजाबाई और उनके जो बेटे शिवाजी वो वापस आ चुके हैं, तब उनके जान में जान आई, यानी उन्हें सुकून महसूस हुआ. देन जीजाबाई कॉल्ड ऑल देम, उन्होंने जीजाबाई ने जो है उन सबको मतलब बुलवाया या बुला कर लिया.
एंड रीशोर्ड यानी उन्हें दिलासा दिया कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके ही जो घर है, आपकी जो जगह है, आपकी जो फील्ड है, खेती है, वहां पे बिल्कुल सेफ हो। ओके, पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, कल्टिवेटिंग देयर लैंड। जीजाबाई हैड द dilapidated temples repaired. In the temples worship began morning and evening। देखिए फिर धीरे धीरे जो है लोगों का वापस आना शुरू हुआ। दे सेटल्ड इन पुणे, वो सेटल्ड होने लगे पुणे में, है ना, जो पुणे छोड़कर चले गए थे, अपना गांव छोड़कर चले गए थे, वो वापस आए। एंड कल्टिवेटिंग देयर लैंड, उन्होंने फिर से जो खेती करना शुरू किया, है ना, कल्टिवेशन स्टार्ट किया। देन जीजाबाई हैड डिलैपिडेटेड टेम्पल्स, जो टेम्पल्स को उन जो एनिमीज थे, शत्रु थे, उन्होंने गिरा कर रखा था, तोड़ कर रखा था, उन्हें फिर से रिपेयर किया, यानी फिर से वो पहले की स्थिति में उन्होंने रिपेयर किए, बनाए, ठीक है, तैयार किए। देन इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगन मॉर्निंग एंड इवनिंग। यस, वहां पे फिर से वर्शिप यानी प्रार्थना, पूजा पाठ सुबह शाम होने लगी। ओके, द टाउन वॉज अगेन थ्रोबिंग विथ पीपल। यस, फिर से जो वो टाउन था, पुणे था, फिर से लोगों से भरा भरा रहने लगा, यानी वहां की धड़कनें जो थी वो शुरू हो गई, लोगों की आना जाना जो था फिर से जान आ गई, ठीक है। दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। यस, इस तरह से पुणे जो है टोटली ट्रांसफॉर्म यानी रिजुवेनेटेड पुणे, किस तरह से काया पलट हुआ पुणे का, किस तरह से चेंजेस हो गए। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, सो लेट्स नो द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव। ओके, द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव, दैट मीन्स उनकी जो कामगिरी थी, जो वर्क फॉर्म था, वो किस तरह से था, वो हम देखेंगे। When Jijabai and Shivaji were in Karnataka, Dadaji Kondev looked after the Pune Jagir. See, that means the Jagir of Shahaji Raje, जो पुणे में उनकी जागीर थी, वो दादाजी कोंडदेव जो थे उन्होंने संभाली थी। When that time when Jijabai and Shivaji were in Karnataka, okay, their family lived in Karnataka. नेक्स्ट ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना ऑल्सो। देखिए बिल्कुल जैसे पुणे में जो शिवनेरी फोर्ट उनकी जो जागीर थी वो संभालने के साथ साथ एज वेल एज ही ऑल्सो सूबेदार ऑफ कोंडाना फोर्ट। ओके, कोंडाना जो फोर्ट है वहां के भी वो सूबेदार थे। ही वॉज वेरी फेथफुल, ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क। यस, जिस तरह से वो अपने काम में बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट थे एंड ऑल्सो फेथफुल एंड ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार थे। ओके, ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेशन, ही सर्व विथ डिवोशन। एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बिल्ट इन पुणे बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजी राजे। इट केम टू बी नोन एज लाल महल। देखिए उनकी सूबेदारी में उस वक्त वहां पर एक वाड़ा मीन्स टाइप ऑफ रेसिडेंट, ओके, वो बनाया गया है, बिल्ट इन पुणे में बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजी राजे के जी के ऑर्डर से। इट बिकेम टू नोन एज लाल महल, उसे आज किस नाम से हम जानते हैं, लाल महल, ठीक है। To encourage the peasants to till their lands, Dadaji gave them concession in the land tax for a few years। देखिए यानी वहां के जो पेजेंट्स थे, किसान थे, वो खेती जो है अपनी कंटिन्यू रखे, शुरू करे, यानी वहां से छोड़कर ना जाए, उन्हें एनकरेज करने के लिए जो दादाजी कोंडदेव थे उन्होंने कंसेशन दिया। जो देखिए इन मिड एज जो पीजेंट को वहां के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था, ओके, उसे हम कर कहते हैं, तो उनमें उन्होंने बहुत सारी कंसेशन यानी सहूलत हम कहते हैं वो दी गई। ही ऑफर्ड प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्फ विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड हैड हरास द पीजेंट। देखिए
जो वुल्फ थे, है ना, किस तरह से वुल्फ जो घना जंगल वहां पे बन गया था और किस तरह से वहां पे इतनी तादाद में वुल्फ आए थे और उन्होंने किस तरह से लोगों को हरास किया था और पूरी तरह से डैमेज करके रखा था हर प्रॉपर्टीज को। तब दादाजी कोंडदेव ने उन वुल्फ को मारने के लिए इनाम रखे थे, ठीक है। प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग अ वुल्फ विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड एंड हरास द पीजेंट, मेनी वुल्फ वर किल्ड। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो वुल्फ थे वो मारे गए। ही रेज पीजेंट पेट्रोल्स ऑफ प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स। देखिए उस समय गैंग्स ऑफ थीव्स यानी जो चोर लुटेरे थे उनकी भी ये बढ़ गई थी, उनका भी जो हरासमेंट था लोगों के प्रति वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तब दादाजी कोंडदेव ने और एक जो ड्यूटी थी वो संभाली। ही रेज पीजेंट पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी गैंग्स ऑफ थीव्स हु रोम द कंट्री साइड, यानी उन्होंने किस तरह से जो गांव के लोग थे, है ना, जो किसान थे, उनका एक ग्रुप बनाया, है ना, और उन्हें किस तरह से वो ड्यूटी दी कि वो अपने जो कंट्री साइड है उसकी रखवाली करेंगे, है ना, और उन थीव्स को या जो डाकू थे, चोर थे, उन्हें किस तरह से पनिश करेंगे। देन रोम कंट्री साइड, ही फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल। यस, ही ऑल्सो फिक्स, दैट मीन्स उन्होंने एक तरीके का जो टैक्स होता है वो उनकी जो जिस तरह से सॉइल, दैट मीन्स जहाँ पे खेती होती है, वो जो जमीन होती है, उस जमीन की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने टैक्स जो है वो फिक्स किया था। दैट मीन्स ही दस मेड द पीपल हैप्पी। उनके इस फैसले से बहुत से लोग जो है वो खुश हो गए थे। In the fields of agricultural reform and revenue collection, the work done by Dadaji Koндев and the Nizam Shahi Wazir Malik Ambar is considered to be very important। देखिए जिस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना और रेवेन्यू कलेक्शन करना, यानी कर वसूली, टैक्स का जो कलेक्शन होता है, ये सारा जो कामकाज है नॉट ओनली दादाजी कोंडदेव बट ऑल्सो द निजाम शाही वजीर मलिक अंबर, उनके द्वारा ये पूरा किया गया। ओके, दैट मीन्स उन दोनों का इसमें सेम जो है इम्पोर्टेंस है।